हरिओम एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। सभी को हरिओम। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप लोग अपनी वीडियोस के साथ ज्वाइन करें हमें। थैंक यू राधा जी, थैंक यू मनीषा जी, शैला जी, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू श्वेता जी, अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। मैं सभी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप लोग वीडियोस के साथ हमें ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग का साक्षात्कार हो सके। सो डियर रितानुषी साधक, हम लोग का प्रोग्राम आ रहा है दिवाली का। आप सब लोग दिवाली की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। आई थिंक गुरुजी हैज जॉइंड अस। ओके, थैंक यू। सो दिवाली is also known as Deepavali. It is one of the most significant and widely celebrated festivals in India and among Hindus worldwide. It symbolizes the victory over darkness and good over evil. Diwali is a time for family gatherings, feasting on delicious sweets and treats, and exchanging gifts and lighting colorful candles and diyas around the home. I hope everyone in the home is making the ladies of the home is preparing sweets and decoration. I think everyone is preparing for the Diwali, right? This festival involves the worship of goddess Lakshmi for prosperity and Lord Ganesha for wisdom. Diwali represents a time of spiritual reflection as well, cleansing one's inner self and embracing new beginnings, making it a joyous and spiritual enriching celebration for everyone. We at Ritanvishi bringing the Diwali Panch Dipotsav and Shri Vidya Sadhana for all Ritanvishi sadhaks. In today's session, Guruji is going to enlighten us all with the significance and importance of Panch Dipotsav and Shri Vidya Sadhana, Vedic rituals which we are going to practice in 5 days in Diwali celebration. And now, without getting delay, I would like to request Guruji to join us and share his knowledge on this magnificent festival. And I would really like to request all the participants, please join us with videos so we can see you all. Thank you, everyone. Guruji, all mics to you. Pranam, Guruji. Hari Om. नमस्ते, प्रणाम। सभी लोगों को बहुत हार्दिक अभिनंदन, वंदन। Welcome to this satsang. And as I said, I really want to see all my Namdanis today in this session. So really, I would like to see you all. And I want to talk about the overall development of your being. So as Falguni in very short, very nicely and beautifully explained about Diwali. So what Diwali is, all of you know. And today, what I'm going to say is how you can strengthen whatever your practices in sadhana, whatever you do in your life, your samsara, your swasthya, your health, your prosperity, wealth, and well-being. So this is a time to just introspect ourselves, to deep dive in ourselves and find out the best way to enlighten ourselves with a beautiful lamps called Deepa or Diva. I would like to start with one nice question. Today somebody asked me that is it right to say Diwali or Deepavali? किसी ने मेरे को आज सुबह सुबह सवाल किया पूछ करके कि दिवाली बोलना चाहिए या दीपावली बोलना चाहिए। और एक और बंदे ने मेरे को दिल्ली से लेटर भेजा कि
आप लोगों को टीच करो कि वो दिवाली ना बोले। Although I replied both of them, and I would like to explain you starting with the word Diwali or Deepavali. The root word is Div. Div. So you have plenty of words you have heard with the word Div, like Dev, like Devi, like Deva, like Divakar, like Diva, Divya. These words are somehow rooted with the word Div. So Diwali is somehow the word is come from Div, Div Dhatu. So many of you may confuse it is Deepavali. Yes, Deepavali is also correct because here the root word is Deepa. Deepa is the lamp, lantern. तो दिवाली और दीपावली दोनों ही सही है। दीपावली यदि आप बोलते हो तो यहाँ जो रूट शब्द है, जो मूल शब्द है वो दीप है। दीपों की आवली, दीपों की लहरी, दीपों का जो आप क्यू बनाते हो, श्रृंखला बनाते हो, उसको दीपावली कहते हैं। और दिवाली शब्द भी उचित है क्योंकि ये शब्द आपके भीतर दिव्यता लाने से है। जो आपके भीतर प्रकाश लाए, जो आपके भीतर दिव्यता लाए, देवत्व की उत्पत्ति करे, वो दिवाली है। तो दोनों ही शब्द सही है। इसलिए इस नाहक के किसी प्रोपेगेंडा में आप नहीं जाए कि दिवाली सही, बल्कि एक ने तो इसको एक्सप्लेन करते हुए यहां तक बोल दिया कि साउथ इंडियंस दीपावली बोलते हैं, जो करेक्ट है, नॉर्थ इंडियंस इसको दिवाली बोलते हैं, जो इनकरेक्ट है, और न जाने क्या क्या प्रोपेगेंडा। सो don't spread any propaganda behind Deepavali or Diwali. The both word is extremely correct. The both words came from the Vedic literature and both words are correct. Don't select Deepavali as a South Indian or Diwali as a North Indian. Don't make this type of South Indian versus North Indian. तो ये मीनिंग सेम है, ठीक है, उस चक्कर में आप मत जाओ। अब जो एक बहुत सुंदर शब्द है दिवाली और दीपावली के जैसा, वो है दीपोत्सव। बहुत सुंदर शब्द है दीपोत्सव। यहाँ पर दिवाली दीपोत्सव शब्द अपने आप को कंप्लीट करता है, क्योंकि दिवाली जहां दिव्यता से संबंधित है, वहीं दीपोत्सव दीप के उत्सव मनाने से संबंधित है। दीप से जब हम उत्सव मनाते हैं तो द फेस्टिवल ऑफ दीपा इज दीपोत्सव। So again, this is the synonym and very beautiful word, Deepotsav. I also appreciate this word as Deepotsav. You may call it Deepotsav also. Deepavali, Deepotsav, both are the synonyms. But next slide, please. Yeah, so this today what I'm going to talk you कि ये जो दीपोत्सव है, दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, it came from Vaikhanus Panchratri. Now this is very the word most of us forgotten, the word Vaikhanus. Vaikhanus is came from the Vaishnav tradition, and in Vaishnav tradition Vishnu and Lakshmi is worshipped. So from thousands and thousands of years in the Vaikhanus tradition, Panchratra, 5 nights, are said to be very divine and to be worshipped
to Lord Vishnu and Lakshmi. That's why in Vaikhanas tradition, in Vaishnav tradition, the Pancharatra, the 5 nights are important. Just like Shakta tradition, Navratri, 9 nights are there, 9 auspicious nights are there. In Vaishnav culture, which we already forgotten, and we not just we say Deepavali as a 1 or 2 days. कभी कभी लोग पूछते हैं 1 दिन है दिवाली, 2 दिन है, मैं कहता हूँ 5 दिन है दिवाली। दिवाली 5 दिन का होता है और इसको पांचरात्र दीपोत्सव कहा जाता है। ये वैखानस परंपरा है, ये हमारा वैष्णव परंपरा है। तो 5 दिन की दिवाली जो 13वीं से शुरू होती है, 13 से शुरू होता है, फिर चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा और यम द्वितीया, ये 5 दिन का 5 रात्रि कार्यक्रम होता है और इसकी उपासना हजारों साल से हमारे भारत में 5 रात की पूजा होती है। जैसे नवरात्रि 9 रात्र की होती है, वैसे ही 5 रात की पूजा होती है। So what is the basic difference between Navratri and this Pancharatri, the 5 nights and 9 nights? The 9 nights is somehow you can say it is from the Shakta tradition or Shaiva tradition, and this 5 nights came from the Vaishnav tradition. So the next question you may raise here, what are the basic how you divide all these 3 days and what the importance of these days? Why these days, the Teras and then Chaturdashi and Amavasya and Pratipada, why these days? As you know, our Sanatan culture has very strongly connected with astrology. So we have a special days and dates which is connected with the planets, rotation of moon, rotation of sun, and the gravity of the different heavenly bodies to ourselves, to our body. तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारे आकाशीय पिंडों से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। उनके ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव हम पर पड़ता है और इसी को समझते हुए अलग अलग त्योहार बनाए गए, जैसे वैष्णवों द्वारा बनाया हुआ ये 5 रात का दीपोत्सव कार्यक्रम। ये दीपोत्सव कार्यक्रम जिसको 13वीं से शुरू होता है, त्रयोदशी से शुरू होता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा और यम द्वितीया, ये 5 दिन बहुत शुभ है, आत्मचिंतन करने के लिए है और इसके लिए हमारे वेदों ने बड़ा सुंदर औपनिषदिक स्टेटमेंट दिया, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। और पूरी की पूरी दिवाली की फिलॉसफी इसी 3 लाइन पे बेस्ड है। जब हम असत से सत की ओर जाते हैं, और ये कब जाते हैं? जब हम अपने भीतर उतरते हैं, अपने खुद को एनलाइटन करने की कोशिश करते हैं, तब हम सत्य को जान पाते हैं, असत्य को छोड़ के सत्य को जान पाते हैं। अपने भीतर के अंधकार को तमसो मां ज्योतिर्गमय, जब हम ज्योति या प्रकाश को, और ये तमसो मां ज्योतिर्गमय आप ये समझो केवल बाहर हम दिया नहीं जलाते हैं, we not only enlighten the lamps outside but also we enlighten ourselves from inside. So real Deepavali is enlightening the deeper inside your being, inside your existence. So the main aim is enlighten yourself to lightening the deeper inside. And
मृत्योर्मा अमृतम गमय, दैट मीन्स फ्रॉम द डेथ, फ्रॉम द मॉर्टैलिटी टू इमॉर्टैलिटी। जहां मृत्यु है उन मृत्यु से हट करके अमृत तत्व को प्राप्त करना। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की, संसार की, मन की, संस्कारों की, कर्मों की। और वो कौन है जो अमर है? वो एकमात्र है जो आत्मसत्ता है, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, जो अनंत है, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए। तो जब हम आत्म तत्व की प्राप्ति करते हैं तो वो मृत्योर्मा अमृतम गमया। ये सारी फिलॉसफी पर ही दीपावली मनाया गया है। मैं चाहता हूं आज के दिन आप लोग को ये बताना कि ये 5 दिन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। आज इसी बात को हम अगले 15-20 मिनट में आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये 5 दिन इतने महत्वपूर्ण है कि अगर इन 5 दिन को ठीक ठीक बिता लिया जाए, इन 5 दिनों को, या कहो 5 रात को, पंचरात्रि है, 5 रात्र है, ये 5 रात को अगर आपने ठीक ठीक से उसको पूरा कर लिया तो ये वर्ष ही नहीं, पूरा जीवन भर आप ज्योति से भरपूर रहेंगे, प्रकाशित रहेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि ये 5 रात क्या क्या करना है और आप क्या करें कि ये 5 रात आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना बन जाए। These 5 nights are auspicious. Today I would like to explain it, why it is so important, what are the benefits actually. When you enlighten these nights, then really not only this year but whole of your life it get enlightened, and all the tamas, all the andhaka, the darkness of your life will go away. So Falguni, next slide please. अभी एक और समस्या है, एक बार आप फाल्गुनी आप पिछले स्लाइड पे जाना। कुछ लोगों ने समस्या रखा कि इस बार जो प्रतिपदा है, गोवर्धन पूजा है, वो 13 में नहीं होकर के 14 तारीख में है। बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में ये सवाल पूछते हैं कि उसी हिसाब से भाई दूज भी 15 तारीख में हो जाता है। सो नाउ इट इज there are so many astrologers are there in a YouTube, in a different channels of media, and they explore their knowledge in a such a way that we all Indians are in little confusion. अभी सभी त्योहार 2-2 दिन के हो जा रहे हैं, we always in confusion. अभी होली तो 2 दिन, दिवाली तो 2 दिन, और ये सारे रक्षाबंधन 2 दिन, सारे 2-2 दिन हो रहे हैं। अभी ये करें, या कुछ पंडित ऐसा बोल रहे हैं, कुछ पंडित वैसा बोल रहे हैं। इस पंडितों के चक्कर में सब घर चक्कर बने हुए हैं। तो कुछ पंडित बोलते हैं जो सुबह मॉर्निंग के टाइम में, सूर्योदय के टाइम में जो डेट रहेगा वही माना जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब वो दिन में प्रवेश कर गया वो वो दिन, वो त्योहार, तो हम उसको मान लें। तो इन सब बातों को दूर रख करके, इसको साइड रख करके, जब हम 5 रात बनाते हैं तो 5 रात 5 ही रात होता है ना, और उसको क्रम से ही करेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं कि दिवाली 12 को भी बनाएंगे, 13 को भी बनाएंगे, या 13 को शांत बैठ जाएंगे, 13 को गोवर्धन पूजा, जबकि गोवर्धन जो प्रतिपदा है वो 13 तारीख को 2 बजे एंटर कर जा रही है। लेकिन भाई हम गोवर्धन मनाएंगे 14 को, क्योंकि 14 की सुबह, सूर्योदय के समय में 14 की सुबह में गोवर्धन पूजा है। तो इतने ज्यादा गणित में नहीं जाना चाहिए, बी इजी। 5 रात है, 10, 11, 12, 13, 14। आप वो एस्ट्रोलॉजी के झंझट में मत जाओ कि कब इन कर रहा है, कब आउट हो रहा है,
कब जो है प्रतिपदा इन करेगा, कब उधर सूर्योदय होगा, कब वो, सिंपली वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग अ सिंगल फेस्टिवल, वी आर सेलिब्रेटिंग 5 फेस्टिवल्स ऑल टुगेदर। तो इसके लिए हम लोग इस झंझट में नहीं जाते हैं। जो पंचरात्र दीपोत्सव है उसका जो शास्त्रीय तरीका है, अब जैसे नवरात्रि में यदि अष्टमी सप्तमी 7वें दिन के अंदर में प्रवेश कर जाती है तो उसको आप अष्टमी मान लोगे, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए इस विवाद में मत पड़ो आप, डोंट गो टू द कंट्रोवर्सीज बिटवीन दीज 2 days, जस्ट वी फॉलो द 5 nights एज अ पंचरात्रि। यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, वी आर सेलिब्रेटिंग द 5 nights। इट इज नॉट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग रियली भाई दूज और धनतेरस और गोवर्धन पूजा। whatever festivals come in these 5 nights, we celebrate it. Important is these 5 nights, important is this Pancharatri Dipotsav. This is more classical method. वो ये ज्यादा शास्त्रीय मेथड है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली फाइट करें वेदर गोवर्धन पूजा इज इन 13th और 14th। इसलिए हम जो ये क्रम रख रहे हैं आप लोग के सामने, ये शास्त्र सम्मत है और पांचरात्रि वैखानस के बेसिक फिलॉसफी को फॉलो करता है, बेसिक फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द धनतेरस एंड वी रीच टू द यम द्वितीया विद ऑल एवरी नाइट्स फ्रॉम 10 to 14 एंड द 15th इज फॉर विसर्जन। जो 15 तारीख है वो विसर्जन का दिन है, तो उस पे हम बाद में जाएंगे। पहले ये 5 नाइट 5 रात कैसे महत्वपूर्ण बने, इसके इंपॉर्टेंस को हम समझें और इसमें हम सबसे बेहतरीन क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले इसका महात्म्य क्या है। अगर ये 5 रात हम लोग ठीक ठीक तरह से जो शास्त्रीय तरीका है उसको निभाते हैं तो हमें क्या लाभ मिलेगा। पहला लाभ है सुख और शांति। जो पहला मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतिफल हमें मिलता है वो सुख और शांति। यही 2 चीज है जो पैसा होने के बावजूद हमें नहीं मिलता है। इवन इफ यू हैव मनी, इवन इफ यू हैव प्रॉस्पेरिटी, इवन इफ यू हैव plenty of wealth, even if you have health, even if you have a big family, many friends, but the thing you not get is sukh and shanti. So what Deepavali can give you, the first and very important part is sukh and shanti. So when I say sukh, don't compare it as a pleasure, rather than it is more a satisfaction with the life. Shanti is mental peace. The second is सौभाग्य and संपन्नता, कि हमें सौभाग्य मिले, हमें संपन्नता मिले, जो करना चाह रहे वो कर पाए। ऐसे ही नहीं कि दरिद्रता की वजह से, असंपन्नता की वजह से हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सौभाग्य मिले, संपन्नता मिले, ऐश्वर्य मिले, वैभव मिले। इससे पहले भी मैंने ऐश्वर्य और वैभव पे बहुत बार चर्चा किया। व्हाट इज रियली द मीनिंग ऑफ ऐश्वर्य? ऐश्वर्य वर्ड इज केम फ्रॉम द वर्ड ईश, ईशत्व। I'll explain it a little later when I talk in Diwali. I will explain you what is the meaning of Ashwar and Vaibhav. Vaibhav word is came from the word Bhava. Bhava, V upsarg and Bhava, root word. Bhava, Vaibhav. So I'll explain you the meaning of Bhav. Bhav का मतलब होता है संसार, विशेष रूप का संसार। वी भव, वी मतलब विशेष रूप। जैसे विपस्सदा,
विशेष रूप से देखना, विशेष रूप का संसार, वैभव. So we'll talk about it. What is ईशत ऐश्वर्य and vibhav, the vaibhav. Also, we will get from this Lakshmi Puja, Deepavali, the bhukti and mukti. That is also one of the very important aspects in our life. What we possess, what we achieve, what we get in life, that is bhukti. And mukti is the wisdom, mukti is the liberation. दीपावली सनातन परंपरा है जो हजारों साल से मनाई जा रही है, और हमारा ये ऋषि धर्म है कि हम इस परंपरा का पालन करें, इस पांचरात बेखानस का पालन करें, और हम उस परंपरा, उस ऋषि परंपरा को आगे अपने बच्चों में दें और उस परंपरा को फॉलो करते रहें. इस पूजा से हमें शक्ति और सामर्थ्य मिलता है, हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है और हमें सिद्धियां मिलती है. हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज का सुसंचालन कर पाते हैं और व्यवस्थित हो पाते हैं और व्यवस्था दे पाते हैं. By the festival of Mahalakshmi Deepavali, we give all these things the strength, and we get the perfection. Our desires can be achieved. We develop the balance in ourselves, in life, in society. So this Deepavali is such important festival, and I explained you what these things, 16 things, we say 16 ETs, 16 things we can get from the Deepavali. 16 चीजें, 16 सिद्धियां, ये सारी 16 बातें लिखी हुई है. ये 16 बातें वैदिक है. बेखानस के मूल सिद्धांत के अनुसार ये 16 चीजें आपको प्राप्त होती है. यही षोडश कला जो है वो आपको प्राप्त होती है दीपावली के पूजन करने से. तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक नामदानी, मेरे वो हर प्रैक्टिशनर जो मेरे साथ साधना करते हैं, जो लोग दीक्षित नहीं भी हैं तो भी दीपावली को जानना चाहते हैं, दीपावली की गहराई में उतरना चाहते हैं, उनको दिवाली किस तरह मनाया जाए, किस तरह से उनका आत्मिक सांसारिक विकास हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वेलबींग, पूरी तरह से समग्र विकास हो सके, उसके लिए दिवाली कैसे मनाना है, दीपावली की किन किन नियमों का पालन करना है, वो हम इस आने वाले 5 दिन में सीखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जो सबसे पहली साधना होती है दीपावली की, वो है श्री विद्या की साधना. तो मैं आप लोगों को अगले 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन तक आपको श्री विद्या की साधना कराऊंगा. ये साधना सुबह होगा, सुबह 7 से 9 वाले सत्र में आप लोगों को ये साधना कराई जाएगी. श्री विद्या की साधना में आपको श्री यंत्र और श्री चक्र के बारे में हम बताएंगे. उसके बाद श्री बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना सिखाएंगे. उसके बाद आपको श्री पंचदशी श्री विद्या मंत्र बताएंगे, उसका उच्चारण सिखाएंगे. फिर आपको श्री षोडशी की साधना वो बताएंगे. आपको श्री खड्गमाला की साधना बताएंगे. आपको ललिता सहस्त्रनाम कैसे पाठ करते हैं वो सिखाएंगे. और मां लक्ष्मी की 10 सबसे शक्तिशाली मंत्र से आपको रूबरू कराएंगे.
जो भयंकर सबसे शक्तिशाली मंत्र है मां लक्ष्मी की, ऐसे 10 महान शक्तिशाली मंत्रों से आपको परिचय कराएंगे। तो ये दीपावली में बेसिक प्रातः सुबह की साधना रहेगी, जिसमें आप गंभीर साधना करके अपने जो आपकी गुरु मंत्र है, नाद साधना है, और जो भी आप गुरु के साथ साधना करते हो, उसमें आप अचानक से वृद्धि देखोगे। देखोगे कि आप गगन में तैरने लगे, आपको बिंदु दिखने लगा, क्योंकि ये सारी साधना बिंदु को पार कराती है। तो ये आप नाद साधना में उत्तरोत्तर विकास, एक जंप पाओगे। You can feel when you do the sadhana. Basically, the Nad sadhana under me, what you are practicing, you feel a very big jump. Not only that, those who are practicing Hatha Yoga, Prana Vidya, and other practices, they also feel their prana is glowing. It's moving such a way upwards that they can feel all the chakras simultaneously with the sadhana of Sri Vidya. That's why the first and priority wise, the best part of this 5 nights is the Sri Vidya sadhana. हम लोग दिवाली मनाते हैं, कभी सोचते भी नहीं है कि हमें श्री विद्या साधना करनी चाहिए, पर दिवाली का मूल है श्री विद्या। अगर आपने श्री विद्या की साधना नहीं करी तो आपका दिवाली व्यर्थ गया। आप अब तक बेकार दिवाली मना रहे थे, उस दीपावली का कोई असर आपको अभी तक नहीं हुआ। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सही का दीपा जलाना चाहते हैं, दीपक जलाना चाहते हैं, तो श्री विद्या की साधना कीजिए, अन्यथा दीपावली व्यर्थ है आपका। अब तक जो दिवाली आपने मनाई है, उसका 1% भी असर आपको नहीं हुआ। तो इसीलिए आप लोग श्री विद्या की साधना कीजिए, और वो 5 दिन में हम आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फाल्गुनी, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद संध्या पूजन होगा। संध्या पूजन में बड़े वैदिक रीति रिवाज से, तांत्रिक रीति रिवाज से आपको हम एकादश देवता की पूजा, ये 5 दिन में 11 देवता की पूजा होती है। गणपति की पूजा होती है, धनवंतरी की पूजा होती है, धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजा होती है। धनवंतरी की नहीं होती, उनके साथ अमृत की पूजा होती है, कलश स्थापन होता है। तो ये सब आपको सिखाया जाएगा। शाम में हमारे साथ पंडित जी महाराज रहेंगे, और वो एक एक करके आपको बताएंगे कि गणपति की पूजा कैसे होगी, धनवंतरी की औषधियों की पूजा हम कैसे करते हैं, अमृत कलश की पूजा कैसे करते हैं। और मजेदार बात यह है कि वैखानस परंपरा में, वैष्णव परंपरा में यमराज यानी धर्मराज की पूजा की व्यवस्था है। तो 5 दिन यमराज की पूजा होती है। यमराज पूजे जाते हैं लंबी आयु के लिए और अच्छी सेहत के लिए। तो अच्छी सेहत के लिए और लंबी आयु के लिए ये 5 दिन यमराज यानी धर्मराज की उपासना होती है। यही जो भी द्वितीया आएगा, उसको भाई दूज जिसमें मनाते हैं, उसको यम द्वितीया कहते हैं। यम आते अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए, तो यमुना की भी पूजा होती है। भाई बहन दोनों की पूजा होती है, यमराज की भी होती है, यमुना की भी होती है पूजा। कुबेर की पूजा होती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। हाँ, गोवर्धन के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, स्पेशली भगवान कृष्ण की पूजा होती है। बल्कि नरक चतुर्दशी, जिसको रूप चतुर्दशी या रूप चौदस कहा जाता है, नरक चतुर्दशी में भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसीलिए छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी को भगवान कृष्ण की पूजा होती है। वो सब आपको बताएंगे, सिखाएंगे कैसे पूजा होती है। मां काली की पूजा होती है। पूरे उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में
बड़े जबरदस्त तरीके से माँ काली की मूर्ति बैठाई जाती है, भव्य रूप से उनकी विग्रह की पूजा होती है, बड़े धूमधाम से। पूरे जो आपका जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसमें माँ काली की उपासना होती है। तो हम लोग माँ काली का भी पूजा करेंगे। उसके अलावे रूप चौदस को हनुमान जी की पूजा होती है, क्योंकि कुछ लोगों का मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म उन्हीं उसी दिन हुआ था। तो बड़े भव्य तरीके से हम लोग हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। गोवर्धन के दिन गौ पूजा करते हैं, और जैसा मैंने बताया यम द्वितीया को यमुना की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी का तो ये 5 दिन पूजा होगा, भांति भांति से पूजा होगा। श्री नारायण विष्णु पूजा भी हम लोग हर दिन लगभग करेंगे। ये पूजा उपासना के बाद संध्या में हम लोग भजन प्रार्थना करेंगे। तो पहले पूजा करेंगे, पूजा के बाद भांति भांति के भजन और प्रार्थना, जैसे सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्रम हो गया, माँ लक्ष्मी अमृतवाणी हो गया, लक्ष्मी अष्टोत्तर मंत्र हो गया, लक्ष्मी चालीसा हो गया, अष्ट लक्ष्मी हो गया, श्री सुक्तम हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, अष्टकम हो गया। कई भांति भांति प्रकार के हम लोग अच्छे स्तोत्र करेंगे, मंत्र करेंगे, पूजा करेंगे। और जब ये भजन और प्रार्थना करेंगे तो इसमें आप सभी लोग परिचित हैं मीनल जी से। तो मीनल जी अपने मधुर वाणी में, अपने दिव्य आवाज में आप लोग को ये भजन प्रार्थना सुनाएंगी। इसके अलावे हमारे साथ कुछ बंसी वादक और बड़े भव्य कलाकार रहेंगे। मनीषा जी के ब्रदर्स हैं सब, तो मनीषा जी अपने ब्रदर्स को लेके आएंगी, और बहुत भव्य तरीके से हम लोग भांति भांति के द्वारा हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा प्रार्थना, भजन स्तुति वगैरह हम लोग करेंगे। तो संध्या में आपका होगा पूजा और भजन प्रार्थना, और सुबह क्या होगा? सुबह होगा हम लोगों का श्री विद्या की साधना। तो अगर आप लोग इस तरीके से ढंग से पूजा, और जब मैं पूजा कराऊंगा तो मैं विधि विधान का ख्याल रखूंगा कि क्या रिचुअल्स है। लोक लोकाचार में थोड़ा बहुत भिन्नता आ सकता है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन मूल रूप से कैसे पूजा की जाती है और इन पूजा से हम कैसे सर्वशक्तिशाली बनते हैं, कैसे हम ज्यादा सामर्थ्यवान बनते हैं, कैसे हमारी ऊर्जा हमारी मनोकांक्षाएं पूरा करती है, कैसे हमारी साधना उत्तरोत्तर विकसित होने लगती है, ऐसा चमत्कार आप लोग इन देवी देवताओं की कृपा से, ये श्री यंत्र की जो महिमा है उससे आपको प्राप्त होगा। तो हम चाहते हैं कि ये 5 रात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें आप सब लोग हमारे साथ हों, और मिलजुल करके ये 5 दिन बहुत शक्तिशाली तरीके से हम साधना करें। पर ये सारा कुछ मैं आप लोग को करा रहा हूं, तो आपसे एक छोटा सा एक इच्छा चाहता हूं। फाल्गुनी जी, आप मेन पेज पे आ सकते हो। मेरी ये इच्छा है कि आप लोग ये दिवाली कैसे मनाई जाती है, उसका वैदिक सिस्टम, ये ज्यादा से ज्यादा लोग तक जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ उठाएं। इसकी भी जिम्मेदारी हमारी नामदानियों को है। हम चाहते हैं कि समाज में उचित तरीका, उचित व्यवस्था की, जो वैदिक काल में पांचरात्र का जो व्यवस्था बनाया गया था, वो वैष्णव व्यवस्था सब तक जाए, ऐसा हम सबका एक दायित्व है। तो हम चाहते हैं कि सारे नामदानी कम से कम एक एक दो दो लोगों को इस प्रोग्राम से जोड़े, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को सब तक पहुंचा सकें, सब जान सकें,
सब सीख सके। ये सारी चीजें केवल अपने तक मत रखिए, उसको आप और लोगों तक जाने दीजिए। अभी क्या है, दिवाली का मतलब सब समझते हैं कि ये पटाखे फोड़ लिए। पटाखे फोड़ने का कोई प्रचलन भारत में नहीं है। मैं कोई आ, ये नहीं कह रहा हूं कि आप फोड़े या ना फोड़े, पर यह वैदिक रीति नहीं है। पटाखे फोड़ना हमारी वैदिक रीति में नहीं है। हमारी वैदिक रीति प्रकाश करने को कहते हैं। शोर मचाना और कुछ ऐसी क्रिया करना जिससे कि हम खुद अपने आप को रिस्की जोन में ले आए कि मेरे हाथ पैर जल जाएं, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ऐसा कोई त्योहार नहीं होता है। बल्कि आप गौर करेंगे, जब आप तिल के तेल का दिया जलाते हैं, तिल के तेल के दिया जलाने से कई प्रकार के कीड़े कीटाणु नष्ट होते हैं। जहां जहां आप देखोगे गर्मी और बरसात के बाद बहुत भांति भांति के कीड़े मकोड़े, जिसको हम लोग उद्भिज कहते हैं, वो पैदा होते हैं, तो वो तिल के तेल और तिल के धुएं से नष्ट हो जाती है। तो हमें तिल का तेल का दिया जलाना चाहिए। अभी क्या है, लोग ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब लगा देंगे, चारों तरफ ट्यूनिंग लाइट कर देंगे। वो रियल दिवाली नहीं, इट इज नॉट दिवाली। आप रियल मिट्टी का दिया जलाइए, उसमें तिल का तेल डालिए। तिल नहीं है तो सरसों का तेल डाल दो। तिल का या सरसों का तेल डाल करके वो जो मिट्टी का दिया है, कम से कम जितना आपका उम्र है उतना जलाओ। ठीक है, उससे दीर्घायु मिलेगा आपको। उतना दिया आप जलाओ कम से कम। पटाखे उठाके ये तो देखो, ऐसी कोई वैदिक मान्यता नहीं है। मैं ना बोलूंगा ना हाँ बोलूंगा, इसका लेखा जोखा नहीं है, कोई शास्त्रीय लेखा जोखा नहीं है। लेकिन दिवा जलाओ। जिन लोगों के हाथ में कला है, रंगोली बनाओ, खूब सारी रंगोलियां बनाओ घर में। घर को सजाओ, साफ सुथरा करके बढ़िया एकदम स्वच्छ करो घर को। और घर में एकदम स्वच्छता के साथ रंगोलियां सजाओ, दीवा लगाओ, घर में दिया लगाओ और घर को सुंदर बनाओ। लक्ष्मी का वास वहां होगा, लक्ष्मी वहां आएंगी। तो ऐसा संकल्प करो कि आज कल से आपको पूरा घर के सफाई में लगना है। और ऐसा नहीं कि घर का लेडीज केवल करेंगी, इसमें जेंट्स लोग को भी साथ देना चाहिए। तो मेरा विनती है, जो भी जेंट्स लोग सुन रहे हैं, सारे पुरुष लोग को भी मिलके घर का साफ सफाई में सहयोग करना चाहिए। तो सब लोग मिलकर के घर को सफा करो, एक एक गंदगी को निकालो, एकदम घर एकदम चकाचक। और उसके बाद उसमें वहां पे जब आप दिवाली करो तो घर को हर कोने कोने में लाइट जाए। और कोशिश करो कि दिया का लाइट जाए। मंदिर में घी के दिए जलाओ और घर के चारों ओर आप लोग तिल का या सरसों का दिया जलाओ। ये जो ये इसका वातावरण के प्रदूषण को हटाने में बहुत रोल है इसका, बहुत गंभीर रोल है इसका। तो इसका सब लोगों को पालन करना चाहिए, ये मेरा विनती है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे अवगत कराओ प्रोग्राम को। जो फाल्गुनी आप लोगों को ब्रोशर दे रही है, वो ब्रोशर आप लोग अपने फेसबुक में लगा दो, अपने इंस्टाग्राम में लगा दो। और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आएंगे और वो सीखेंगे कि दिवाली, सच्ची दिवाली कैसे बनाते हैं। यहाँ पंडित लोग को भी हम बुला रहे हैं अपने प्रोग्राम में। सब वैदिक रीति रिवाज से सारे पूजा आपको सिखाएंगे, सारे विधान सिखाएंगे, श्री विद्या की साधना सिखाएंगे। तो ये चीजें आप लोग निश्चित रूप से करो। मैं फाल्गुनी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो सामग्री है, जो पूजन सामग्री है, वो सबका लिस्ट सबको भेज दे। और साथ में खड्गमाला की पुस्तिका और
ललिता सहस्त्रनाम की पुस्तिका पीडीएफ सबको जरूर भेजे, ताकि जब उसका पाठ हो तो खड्गमाला और ललिता सहस्त्रनाम को वो पढ़ सके। तो मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये काम पहले ही कर दो, आजकल में कर दो, और सब लोग खूब तैयारी करो, खूब मन से, खूब प्रसन्न मन से। देखो, देवी को बुलाते हैं पूरा प्रसन्न मन से, है ना? तो खूब प्रसन्न मन से देवी को बुलाओ। अच्छा, कुछ लोग वो खरीदते हैं लक्ष्मी गणेश का जो मूर्ति खरीदते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी चाइना से बहुत वो आता है, मूर्ति आता है। हम इसलिए मना कर, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। वो जो चाइना वाली मिट्टी होती है ना, वो हमारी मिट्टी में घुलता मिलता नहीं है। जब उसका आप विसर्जन करते हो तो वो पानी में घुलता नहीं है, और वो उसमें कई तरह के प्लास्टिक होते हैं, कई तरह के ऐसे केमिकल होते हैं जो तालाब को के पानी को भी गंदा करते हैं, पॉइजनस बनाते हैं, और मिट्टी को भी वो पूरी तरह से डिस्पोजल नहीं होता उसका। तो आप अपने शहर के जो ग्रामीण लोग, गांव के लोग, जो कुम्हार लोग मिट्टी का बनाते हैं, जैसा भी बने, जरूरी नहीं कि बहुत सुंदर गणेश जी, और बहुत लोग देखो पत्थर में ऐसे ऐसे रंग देते थे, वही गणेश जी हो जाते थे। वो है ना, सुपारी में ऐसे बांध दिए वो उसको, मौली को बांधे, वो गणेश जी हो गए। तो ऐसा नहीं है कि एकदम गणेश जी का एकदम ऐसा चेहरा, वो जैसा भी भाव से पूजा करना है। तो कुम्हार की मिट्टी का, जो भारत की मिट्टी है, उस मिट्टी का आप लक्ष्मी गणेश का मूर्ति लाओ। वो बहुत चमकीला और चाइनीज मिट्टी वाली वो मत लाओ। वो इस जमीन में डिस्पोजल नहीं होता, वो घुलता नहीं है, पानी में भी नहीं घुलता है, वो मिट्टी में भी नहीं घुलता है, तो उसको नहीं लाना। तो वो लेके आओ, और हम आपको दिवाली करना, मनाना सिखाएंगे। दिवाली के हर वो लाभ जिससे कि आप अपना उत्थान कर सकते हो, सामर्थ्यशाली हो सकते हो, वो आपको सिखाएंगे। बस मेरी इतनी विनती थी। आप लोग मेरी बात को इतने प्यार से सुने, आप लोग का बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रश्न होता है आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। थैंक यू गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी पॉइंट्स को। मैं अब स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे नामदानी हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग की कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। वन बाय वन आपकी क्वेरीज को लिया जाएगा। मैं देख पा रही हूँ राजीव सर ने हैंड रेज किया है। राजीव सर, प्लीज आपसे हम स्टार्ट करते हैं, जब तक हमारे पास दूसरी क्वेरीज भी आती हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम अलाउइंग यू। हाँ जी, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, वैसे तो सवाल तो बहुत सारे हैं, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि वास्तव में इतनी मैंने जिंदगी गुजार दी और कभी दिवाली ठीक से मनाई नहीं। जैसे सब लोग मनाते हैं हिंदुस्तान में, वैसे ही हम नहीं मनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो इस दिवाली को हमारी एक नया मीनिंग देने के लिए, हमें हमारी साधना में आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत ही दिल से आपका आभारी हूँ। फिर गुरुजी, प्रश्न ही मेरे मन में आता है, जैसे धनतेरस है, धनतेरस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि हम धनतेरस को जो हम क्या करते हैं, एक सिक्का ले आए बाजार से, चांदी का सिक्का, तो बस वो धन आ गया घर में, फीलिंग है कि उस धनतेरस में मतलब घर में धन आ गया। वी आर लिमिटेड टू दैट। वहीं तक हमारी अकल काम करती है, वहीं तक हमारी समझ काम करती है। तो एक्चुअल में हमें धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए? ऐसे ही भाई दूज, जैसे भाई दूज में आपने हमने देखा, भाई ने बहन ने भाई को राखी बांध दी, वो धागा बांध दिया, मिठाई खिला दी, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। सो लेकिन ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा गहरी होंगी, 100% बहुत गहरी होंगी, जैसे आपने आज बताया है। तो इस गहराई से हमें कैसे परिचय होगा हमारा? आप कराएंगे आगे आने वाले समय में, लेकिन थोड़ा सा अगर आप आज बता देंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, शर्मा जी, हम लोग हर दिन, यानी जैसे धनतेरस का दिन सुबह 10 बजे जो मेरी क्लास होगी, मैं क्लास के बाद पूरा धनतेरस के बारे में बताऊंगा। एक एक कहानी, एक एक लोकाचार, और उससे संबंधित आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब विस्तार से बताऊंगा। आप एकदम निश्चिंत रहो कि इस बार इन पांचों पूजा को, इन पांचों त्योहार को जितनी गहराई से जान पाओगे, उतना शायद आपने जीवन में ना जाना होगा।
तो मैं बहुत गहराई से बताऊंगा कि ये धनतेरस शब्द भगवान धन्वंतरी से आया था, जो धन्वंतरी मां लक्ष्मी के साथ समुद्र मंथन के बाद प्रकट हुए थे। और वो धन्वंतरी कौन कौन से औषध को लेकर प्रकट हुए थे, धनतेरस में किन किन औषधियों की पूजा होती है, और अमृत कलश क्या है, ये सब बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि धन का 13 गुना बढ़ना किसे कहते हैं। धनतेरस में धन का 13 गुना, इसमें चांदी के सिक्के या सिक्के और कौड़ियों का क्या हिसाब किताब रहता है, बड़े विस्तार से बड़े इत्मीनान से बताएंगे। यही नहीं, जो नरक चतुर्दशी है उसमें हनुमान जी की पूजा कैसे की जाती है, भाई दूज में नारियल का गोला क्यों और कैसे पीले कपड़ों में बांधा जाता है और कैसे भाई को दिया जाता है, ये सारी बातें पूरे विस्तार से बताऊंगा। आप निश्चिंत रहो, एक एक लोकाचार बताऊंगा, उसका गूढ़ार्थ बताऊंगा, उसका साधना में क्या असर होगा, कैसे होगा, ये भी बताऊंगा। इसलिए आप समय का इंतजार करो, पूरे उत्साह उमंग के साथ एक एक कार्यक्रम को बड़े सजगता से आप सुनना, बड़े होश में सुनना, आपको बड़ा आनंद आएगा। एक और छोटा सा प्रश्न है गुरु जी, कि जैसे कलश की स्थापना है, तो कलश की स्थापना क्या हमें 10 तारीख को ही कर लेनी चाहिए, और उसको 14 तक ही रखना चाहिए? ये तो एक सब बार मैं ये बताऊंगा। बताइए। कलश, अमृत कलश की स्थापना होती है, और ये कैसे होती है, पंडित जी हमारे साथ रहेंगे, और पंडित जी आपको जैसे जैसे बताएंगे, आपके पास पूरा सामग्री, पूजन सामग्री रहेगा, आप वैसे वैसे करते रहना। वो आपको पूरा वैदिक नियम निष्ठा के हिसाब से पूरी बात आपको बताएंगे। जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट in English when Pandit ji is speaking in Hindi or in his language, then I will try to translate those important things in English at the same time, simultaneously. ठीक है गुरु जी, ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Guruji. Thank you, Rajiv sir, for asking beautiful query. I would like to request Riya ji. We can see Riya ji ने hand raise किया हुआ है. रिया जी, आप अपनी query पूछेंगी? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम रेनू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दीपावली की शुभकामनाएं पहले तो। और जो आप साधना, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं कहीं बाहर थी, मैं आई, मैंने जल्दी जल्दी ज्वाइन किया, तो जो छूट गया है आई थिंक कोई भी मुझे बता देगा वो क्योंकि मेरा सारा स्किप हो गया। रिकॉर्डिंग हो रहा है शायद, रिकॉर्डिंग आप फाल्गुनी से ठीक है, बात ठीक है। करना, वो रिकॉर्डिंग मेरा आपको शेयर करेगी। जी जी जी। थोड़ा सा मेरा एक बड़ा पर्सनल और बड़ी दुविधा वाला मेरा क्वेश्चन है। मैं अभी पूछ लूं या इसके बाद में आपसे इनके अभी आप पर्सनल? पूछ सकते हैं, अगर अच्छा, बहुत पर्सनल नहीं होगा तो मैं जवाब दे दूंगा। नहीं नहीं, वैसा पर्सनल नहीं है। एक्चुअली ये है कि दीपावली की पूजा तो हम शुरू से करते हुए आए हैं कि घर में साफ सफाई और बहुत अच्छे से करते हैं हमेशा। इस बार क्या हुआ है कि मुझे अपना घर ही शिफ्ट करना है, और कोइंसिडेंस ऐसा हो गया है कि मुझे वो, ऐसे हमें फर्स्ट को करना था, वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते यहाँ तक आ गया है, अब या कल या परसों। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहीं पर इस वाले घर में कर लूं या फिर मैं घर शिफ्ट करके करूं या कब करूं। बहुत कंफ्यूजन है ये देखो, सर गुरु। शास्त्र के हिसाब से यदि आपने वो घर खरीद लिया है, उसके लिए पैसे पेड हो गया है, और अगर वह गृह पूजन हो गया है, तो आपको दिवाली वहीं मनाना चाहिए। लेकिन यदि गृह पूजन नहीं हुआ है, तो भी आप, चूंकि आपने वो घर को खरीद लिया है, तो वहां जाकर के दिया जरूर जला लीजिए, उस घर की साफ सफाई जरूर करा दीजिए। बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है गुरुजी, वो सब कुछ है बिल्कुल। बस ये है कि हमें कुछ ऐसा पेपर वर्क वगैरह चल रहा था, तो हम अभी बस शिफ्ट नहीं हो पाए नहीं, आप दिवाली नए घर में ही मनाइए। पुराने घर में चूंकि अभी आप रेगुलर पूजा वहीं कर रहे हैं, आपके कुल देवी देवता वहीं है, तो निश्चित रूप से आप जो मूल पूजा है, आपकी जो कलश स्थापना है, वो आपकी कुल देवी या कुल देवता जहां अभी आप रह रहे हैं वहीं होगा। कलश स्थापना वहीं होगी जहां अभी आप रह रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप नए घर में जाकर के पूजा जरूर करेंगे, वहां पे दिया वगैरह जरूर जलाइए, वहां पे साफ दोनों सफाई घर किया में कर जाए। सकते हैं, ऐसा है क्या? दोनों क्या? घर पे, दोनों जगह कर सकते हाँ, हैं? आपको दो, लेकिन कलश एक ही जगह जहां पे रेगुलर यहीं पे, पूजा होती आ रही है।
फिर उस कलश को ले जाके हम वहां पर वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसी चीज का कंफ्यूजन था क्योंकि हमारा अभी तक, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन यहीं पर ही जुड़ी हुई है अभी, और मुझे लग रहा था कि बिल्कुल एक नई जगह जाकर वो शुरू करना, मुझे वो चीज ठीक भी नहीं लग रही थी। जहाँ कुल देवी, जहाँ रेगुलर आप पूजा करते आए वहीं कीजिए, और जब आप शिफ्ट करोगे तो पूरा कलश सहित वहां शिफ्ट हो जाना। अच्छा, तो ये हम क्या धनतेरस वाले दिन कर सकते हैं? हाँ, धनतेरस से पूजा शुरू कर दो। हम तो 5 दिन पूजा करवाएंगे, 5 दिन लक्ष्मी पूजा होगा और 5 दिन श्री विद्या पूजा होगी। ठीक है, ठीक है। अब मुझे और कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको कॉल जरूर करूंगी। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू धन्यवाद। गुरुजी, थैंक यू रिया जी। हम देख पा रहे हैं कि गोपिका जी ने भी अपना हैंड रेज किया है। गोपिका जी, वुड यू लाइक टू शेयर आंसर, सॉरी, शेयर योर क्वेरी? Hari Om Guruji. I have a very unusual problem actually. I'm not home, Guruji. I won't be back in my house until after Diwali is over. But I really want to uh, attend this program. So I had shared this with Falguni ji. I don't know how I can be a part of this because I will not be able to join the live session in the morning, I understand, because it'll be too early for me. How should someone like me be managing a situation like this, Guruji? Not being there, but wanting to be there. Yeah, Gopika, I think Falguni will provide you the recordings also. So suppose whatever the good time in the morning time when you want to do puja in a Brahma Muhurt, you can do Shri Vidya Sadhana. You should do Shri Vidya Sadhana in the morning time only, after sunrise. So whatever recording you will get, that recording will, I think, for 5 days. Isn't it, Falguni? She will get recording for 5 days, isn't it? 6 days it will be available, Guruji. 6 All the days. recordings will be available from November 10 to November 16. Yes, so it's your will, whatever time, wherever you are there, this time in which, with whatever time zone, do sadhana in a Brahma Muhurt, and the Sandhya sadhana when thoda अंधेरा शुरू हो गया, गोधूली बेला, we say गोधूली बेला, just after sunset. So just after sunset you can start the Sandhya puja. So Prata puja and Sandhya puja, both practices we will do every day, but you can do according to the recordings. You can see the recording and according to that you can follow it. I hope you should do this practice to get the maximum benefits. I will try my best, Guruji. I'll do that. Thank you so much. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you, Gopika ji. Guruji, we have a query in a chat box from Anuji, Anu Ganpati ji. She is asking, Hari Om Guruji, I don't think we get Ganesh and Lakshmi idols made of clay here in Bangalore. If I don't find them, what is the alternative? Well, the best part is you can keep the supari. Supari को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाल्गुनी? Supari. Guruji, Supari is Supari, I think, Guruji. Betel nut. Oh, Yeah. okay. Betel nut. Thank you. Betel nut. Guruji. Okay. Betel nut. Okay. So you understood the supari. So you put the molly, you cover the supari over the molly tightly. Molly, you know, this is molly. Okay. इसको आप लोग क्या बोलते हैं? What is in English? I don't know. It is molly, we say. Kalava or molly. Do we get that in any store that sells samagri for the Yeah. puja and all that, Guruji? So you tie the kalava over the supari and make 2 suparis, one for the Lakshmi ji, one for the Ganesha. So it will work. And when you keep it, so first you put rice, unbroken rice. We say akshat. Akshat is unbroken rice. So first unbroken rice and then keep the Lakshmi Ganesh over the rice. So this is the one of the way when you have no murti vigraha, then you can use it. Otherwise, you can also paste the poster of Lakshmi Ganesh behind your wall. And then you can keep all the samagri and you can do puja with the poster also.
Okay. Thank you, Guruji. Guruji, also I would like to suggest here that you can find all these puja items in Zepto or in Blinkit as well. Since you all are from Bangalore, I'm sure you will get it easily on Blinkit and Zepto. Just a suggestion to check it out. We will do that. Thank you, sir. Also, you can make Ganesh Ji ka murti with little bit of turmeric and water paste. You know how to do that, right? And make a little drum type of thing, like a little mound. Yeah, I can show you pictures of it. We can share some pictures of it with you. And it's very easy to make. Make a paste of turmeric and water, and then make a small Ganesh, we have kind of made. I thing, mean, and when my that's- daughter was young, we used to make them at home. But Lakshmi, we have not. Like, it could get complicated, and I don't want to make it wrong, You you know. can use I'm Supari. scared that it Supari may is, not. Yes. I think we accept everywhere in every part of the India, we do this way. Guruji, there are different Uh, kinds of suparis. There are. Are you talking about the whole supari Whole. or the broken whole? No, The broken. light brown color. Yeah, light brown, whole Okay, okay. Supari. Yeah. Okay. And what is the name of the thread, Guruji? I'll just write it down. Mauli, we say Mauli. Okay. Mouli, Mauli. Okay. Or some people also call it Kalawa. So Kalawa. So Mauli or same synonym is this. But Okay. English, I don't know the exact English translation of it. I don't think there is a word in English. I'll just write this word down. Yes. Okay. I will Thank you, share Guruji. some useful links with you, Anuji. With all the participants, I will share some links. Okay, so So great. thank you, Guruji. Thank you, Manisha, I Anuji. think- We can see there is one more query from Manisha ji. नमस्ते गुरुजी। Namaste. गुरुजी, मेरा एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम जो ये पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी, तो सरस्वती मतलब हम जब खरीदते हैं पोस्टर्स या फिर तो उसमें सरस्वती जी क्यों होती है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। सरस्वती के विषय में मैं डिटेल में बताऊंगा मेरे प्रोग्राम में, क्योंकि जब हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो साथ साथ दिवाली के दिन कलम यानी पेन और कागज और जो लोग अपना वो रखते हैं, रजिस्टर रखते हैं, व्यापार का जो रजिस्टर रखते हैं उसकी भी पूजा होती है, चित्रगुप्त की पूजा होती है, और लक्ष्मी और सरस्वती जी की पूजा होती है। तो मैं आपको उन दिन विस्तार से बताऊंगा कि सरस्वती जी की पूजा भी उन दिनों क्यों होती है। महालक्ष्मी ने महाकाली और महालक्ष्मी को उत्पन्न किया सृष्टि को रचने के लिए, ऐसा व्याख्यानस तंत्र कहता है कि महालक्ष्मी मूल देवी है और उनसे ही महासरस्वती और महाकाली की उत्पत्ति होती है, और बाकी इन तीनों महादेवियों ने बाकी सारे देवी देवताओं को उत्पन्न किया, ऐसा व्याख्यानस तंत्र कहता है। तो आपकी इस प्रश्न को हम आने वाले जो भी मेरे दिवाली के लेक्चर्स होंगे उसमें मैं ये आपको बताऊंगा। एक इसी से रिलेटेड है जो आपने कहा, मैं पढ़ रही थी तो इसलिए मेरे को वो क्वेश्चन बना कि श्रीदेवी का नाम तो हम जानते हैं, श्रीदेवी हम लक्ष्मी को कहते हैं, तो नीला देवी और भूदेवी हम मतलब वो भी उसी का ही है, वो मुझे थोड़ा सा था कि देखो, जब वैभव लक्ष्मी के बारे में जानेंगे तो उनके कई रूप हैं। अष्ट लक्ष्मी मूल है और उनके षोडश यानी 16 मातृका रूप है। तो अभी मैं बताऊंगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और बहुत विस्तार हो जाएगा, अभी समय भी नहीं है। तो जब मैं माँ लक्ष्मी के बारे में बताऊंगा तो उनके सभी रूपों के बारे में बताऊंगा। पर आप ये समझ लेना, जब श्री साधना की बात होती है तो केवल महालक्ष्मी की नहीं होती है, वो त्रिपुर सुंदरी की भी होती है। और श्री त्रिपुर सुंदरी के विषय में समझना उतना ही जरूरी है जितना कि महालक्ष्मी के बारे में। एक और देवी है, देवी कमला, जो माता लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप है या महाविद्या स्वरूप है। और जो देवी कमला है वो पार्वती की रूप है, वो अर्धांगिनी है शिव की, याद रखना। ये विषय को मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप लोग इस कॉम्प्लेक्स चर्चा को समझेंगे। बहुत लोग देवी कमला को
देवी त्रिपुर सुंदरी को या श्री देवी को या लक्ष्मी देवी को एक ही मानते हैं, पर इसमें बहुत डिफरेंसेस है इनकी पूजा में, इनकी उपासना में, इनकी वैभव में, इनके एट्रीब्यूट्स में, इनके रूप में। वो मैं समय आने पे आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, फाल्गुनी आप म्यूट हैं। Ji Guruji, thank you. Thank you, Guruji. Thank you, Meenal ji. Thank you, all the participants, for joining the session today. I would really like to request to the participants who are sending me text in the chat box, you have my number, connect with me. I will help you to complete the registration process and all. I will take care of all your queries. Point 1. Point 2, आप लोग जो भी पूजा करेंगे, जो आपकी 5 दिन की जितनी भी पूजा है, कलश स्थापना है, जितनी भी मूर्ति स्थापना हो रही है, उसका लास्ट डे विसर्जन होगा. So all the session, everything is covered in these 5 days program. So participants who are having query कि सुपारी का क्या होगा या किसी भी देवी देवता का क्या होगा, तो पूरा विसर्जन का प्रोसेस पंडित जी बताएंगे. और third point, please I request to all the participants, connect with the social media accounts of ours, Ritanvishi's account, Guruji's account, Meenal ji's account, because all these 3 accounts are having actively with all the programs details, links, and you will not miss anything then. So please follow our pages. And fourth point, participants who wants recording, these sessions will be privately Facebook live and will be shared only within 5 minutes. It will be available with the participants who want to complete in any time. So no worries, nothing will be left. You can take care these sessions anytime. So all the Indian participants, international participants, follow our social media pages to get all the links and everything. Any more queries? Everyone has my number. Please text me anytime. I will return back all your queries. Thank you so much, everyone. So let's, okay, Gopika ji, you have any query? Sorry, Guruji. So I will be doing all this puja mentally, right? Because I cannot be getting the supari or any of these, because I'm doing it in a hotel room. Okay, no problem. For those who cannot purchase all those things, cannot possess all those things this time in the present moment, for them I also give the solution for it. All the puja can be done in a mental way that I will explain you. Don't worry. Thank you, Guruji. As always, you have always answers of all your students' queries. Thank you so much. Thank you so much. So to all the participants, all the students, thank you so much for joining today's session. And please share the program information on your social media pages and the participants who can get benefit from this. जिनके भी international relatives हैं, national relatives हैं, who wants to complete this program with the Vedic rituals, I really request to recommend this program to each and every participant, each and every relative if possible. Thank you so much. See you on the November 10th with same energy which you have today for the Lakshmi Pujan. Hari Om, Pranam. Pranam, Hari Om, thank you. Pranam Guruji. Namaste, Guruji. Pranam Guruji. Hari Om, thank you. Gurudev.